کرائے پہ بھی آپ نے دیا ملک کے ساتھ چوری اور غداری کر کر، کیونکہ آپ نے اپنے باپ کی جاگیر سمجھی ہوئی تھی اور اپنے باپ کا ملک سمجھا ہوا تھا اور اپنے باپ کا بینک سمجھا ہوا تھا اور باپ کی ہر چیز سمجھی ہوئی تھی، تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ باپ کی جاگیر کبھی چلی جائے گی اور احتساب کا عمل آ جائے گا اور ایک کوئی قوم کی خدمت کرنے والی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی آ جائے گی۔ تو اب ہم نے جو چیزیں شروع کی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا بڑے وثوق سے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، اسپیشلی میڈیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میں آپ کو پہلے کیسے بتا دیتا ہوں، جیسے کرتوت ہوتے ہیں ویسا انجام ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ہم میں سے قتل کرے گا تو ہمیں پتہ ہے پھانسی ہوگی، تو اسپیکولیشن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے اندر بڑی کلیئر کٹ چیزیں، اور کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنی سیاست کے اندر کوشش کی ہے کہ میں ایویڈنس کے ساتھ بات کروں، تو یہ میں آپ کو آج دوں گا بھی تاکہ آپ اس کو لے کے آگے چل سکیں۔ سر میری منسٹری میں نیشنل بینک نہیں آتا، میری منسٹری میں بلڈنگ نہیں آتی، میری منسٹری کے اندر جو میرے کام ہے وہ تو میں کر ہی رہا ہوں، لیکن میری منسٹری کے علاوہ بھی تو آپ کا جتنا پاکستان ہے اتنا ہی میرا پاکستان ہے، تو جتنی چیزیں ہمیں ملیں گی، کیونکہ ہم مشکلات میں چاہے وزارت ہو، صدارت ہو، آپ ہو، میں ہوں، اور پاکستانی عوام میں جو مشکلات سے گزری وہ یہ 24,000 ارب کی چوریاں کس طریقے سے کی گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ سب چیزوں سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو بتانا تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایویڈنس دینا بہت ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو ویریفائی جب آپ کریں تو آپ کو چیزیں ملیں، اور یہ شروعات ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی میں لندن سے بہت ساری چیزیں لے کے آیا تھا، اس کے بعد یہ اب شروعات ہے، جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ جیل تو اب بہت چھوٹی چیز رہے گی، میں نے ذکر کیا ہے چوری کے کپڑوں کا، تو اگر سمجھدار لوگ ہیں، میں اس کو ایلیبریٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نیشنل ٹیلی ویژن میں بیٹھا ہوں، تو آئندہ آنے والے ہفتوں میں آپ کو خود پتہ چلے گا کہ عوام نے کیا کرنا ہے، پاکستانی قوم نے کیا کرنا ہے، ہم نے آپ نے سب کے مل کے کیا کرنا ہے، اور قانون نے کیا کرنا ہے۔ جی سر۔ وہاب کامران فیصل صاحب، یہ چلیے باتیں تو پہلے اس طرح کی ہوئی، لیکن کراچی کا ایشو ذرا کافی آپ بھی کراچی سے ہیں چھوٹے، 2 دن کی بارش ہوئی، صوبائی حکومت کہہ رہی وفاق کی ذمہ داری ہے، وفاق کہتا ہے کہ الیکٹرک کی ذمہ داری ہے، 19 بچے بندے مر چکے ہیں کرنٹ لگنے سے، انفراسٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں پانی ہی پانی ہے پورے شہر میں، تو کیا ہوگا سر، اس کراچی کا کیا ہوگا، وفاق کچھ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، یہ مسئلہ تو لوکل باڈیز اور پیپلز پارٹی کا ہے، اور جہاں تک اگر آپ ہماری بات کریں تو ہمارا کام ہے پانی پرووائڈ کرنا، جس کے لیے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، اپنی جتنی کوشش وزارت سے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ یہ فیلئر ہے، اور جہاں تک فلڈ کی انڈیکیشنز ہیں اس کے اوپر ہم نے لیٹر لکھ دیے تھے، باتیں کر دی تھی، بریفنگ میں نے کی، میٹنگ کو چیئر میں نے خود کیا، اور یہ سندھ گورنمنٹ کو، یہاں تک کہ میری کل جنرل افضل صاحب سے بات ہوئی ہے جو نیشنل ڈیزاسٹر سیل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا، اور ریکمنڈیشنز گئی تھیں کہ نالوں کو صاف کیا جائے، اور نالے صاف نہیں ہو سکتے بارش کے دوران۔ تو یہ تو کمپلیٹلی فیلئر ہے پیپلز پارٹی کا، اگر یہ سیاسی تعصب کا شکار کر رہے ہیں، اور کراچی کو کیونکہ وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور اس کا مینڈیٹ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہے، اگر اس کو کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، لیکن میری سید غنی صاحب سے ہی بات ہوئی، اسپیشلی میرے اپنے علاقے، میری اپنی کانسٹیٹیونسی بلدیہ کا بہت برا حال ہے، تو نیشنل ڈیزاسٹر سیل نے مجھے بات کی، میری کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے، جیسے ہی میں کراچی جاؤں گا۔ ہر طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم سپورٹ میں آپ کو انفراسٹرکچر تو نہیں دے سکتے، ہم سپورٹ میں آپ کو پیسے تو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو سپورٹ میں صرف ٹیکنیکلٹیز دے سکتے ہیں، وہ ڈائریکشنز دے سکتے ہیں، اور وہ ہم نے دیے۔ ہم نے تو قانون سازی بھی، جو ہمارا کام نہیں تھا، ہم نے لاسٹ ایئر وہ بھی کر کے دے دیے، لیکن اگر پروونشل گورنمنٹ اس کے اوپر کام نہیں کرتی تو یہ تو پھر جنہوں نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو، ان کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ تو پانی آیا ہے تو اللہ میاں رحم کرے، اتنی تباہی ہوگی اور اتنے معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئی، پانی نہیں آتا تو تباہی ہوتی ہے، گورنمنٹ نارمل ڈیز میں چلتی ہے تو تباہی ہوتی ہے، تو یہ تباہی کا جو تعلق ہے وہ تو ووٹر کو اب سمجھنا پڑے گا کہ اس نے ووٹ کس کو دینا اور کیا سوچ کے دینا۔ لیکن جی پیسے تو ہم دے چکے ہیں نا، جتنا صوبے کا حق بنتا ہے اس صوبے کے حساب سے ہم ریلیز کر چکے ہیں، لیکن اگر صوبہ وہ اپنے کھانے پینے میں لگا دے اور اپنی فیکٹریاں خریدنے میں لگا دے اور حوالے ہنڈی میں لگا دے تو ہمارے پاس وفاق کے پاس تو پیسے نہیں، اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کا 55% تو ہم سود میں دے دیتے ہیں، اس جو 45% بچتا ہے اس 45% میں سے 25% ہم صوبوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو 20% ٹیکنیکلی کم و بیش ہمارے پاس پیسہ جس نے وفاق چلانی ہے، تو ہم تو خود مائنس کے اندر ہیں۔ تو اس سچویشن کے اندر یہ تو راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو چھوٹی چھوٹی مشینری چاہیے، چھوٹے چھوٹے کرین چاہیے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں چاہیے، لیکن انٹرسٹ نہیں ہے۔ انٹرسٹ صرف ڈیموکریسی میں آ کر کسی بھی جگہ کی حکومت لے کے مال بنانے کی ہے، تو یہ تو ہوگا پھر۔
देखिए जी, मैं अभी ये सारे जो इश्यूज हैं वो यहाँ से बैठ रिजॉल्व कर रहा हूँ. मेरा हल्के में मेरा एमपी वहाँ मौजूद है, बड़ा अग्रेसिवली काम कर रहा है और मैं मिनट टू मिनट उससे कांटेक्ट के अंदर हूँ. और जैसे ही मैं जाऊँगा नेचुरली मैं अपने हल्के में भी जाऊँगा, लेकिन मैं हल्के में जाकर उनको क्या बताऊँ. वो तो ये कहते हैं मैंने आपको वोट दिया था, आपको एमएनए बनाया, लेकिन एमएनए वफाक का बनाया मुझे उन्होंने, और वफाक का वजीर बनाया. अगर सूबे में मेरी हुकूमत होती और सूबे में मैं काम कर सकता होता तो फिर मैं जिम्मेदार भी था. लेकिन मैं उनकी बावजूद भी जो मैं कोशिश कर सकता हूँ, नेशनल डिजास्टर सेल के थ्रू कर सकता हूँ, कोर कमांडर्स के थ्रू कर सकता हूँ, वफाक की तरफ से कर सकता हूँ, मिनिस्ट्री की तरफ से, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट सीरियस हो काम करने के लिए. अशफाक साहब दो छोटे छोटे क्वेश्चन है. एक जो आपने कहा है कि नेशनल बैंक को एक जो बिल्डिंग जो रेंट पर दी गई है, क्या स्टेट बैंक नेशनल बैंक की यही बिल्डिंग थी जो किराए पर दी गई, या अगर दी गई है तो क्या इसमें जरा माइनॉरिटी चीजें बताएं कि क्या खिलाफवर्जी हुई, किस कानून की खिलाफवर्जी हुई है बताएं. दूसरा ये बताएं कि आज ताजरों ने जो ऐलान किया है हड़ताल का, 2 मराज में हड़ताल करने का ऐलान किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, जहाँ तक नेशनल बैंक की बिल्डिंग की बात है तो मेरा सिर्फ सवाल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1. नंबर 2 ये कि आपकी मेरी कोई बिल्डिंग, कोई कमीज, कोई हैंगर, कोई जूता, कोई चीज़ किराए पे गवर्नमेंट में आज तक गई है 35-40 साल में? नहीं गई. इनकी क्यों जाती थी? ये अपने बंदे लगाते थे, अपनी चीज़ें वहाँ अपने बंदे अपॉइंट करते थे, वहीं से कर्जे भी लेते थे, वहीं से कर्जे माफ भी कराते थे, वहीं से अपनी सड़ी हुई बिल्डिंगें जो हैं बनाते थे, और बनाते थे कि जो किराया बाजार से ज़्यादा हो या बाजार के बराबर हो. क्या ये काम किसी और बैंक के साथ क्यों नहीं किया, प्राइवेट बैंक के साथ क्यों हर चीज गवर्नमेंट से रिलेटेड है? क्योंकि आपने अपने बाप की जागीर समझी हुई थी, तो बाप की जागीर नहीं रही. अब हम बाप की जागीर जो जिसके असल मालिक है पाकिस्तानी, उन सब तक पहुंचाएंगे, और जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक जेल में डालेंगे. देखिए जी, ताजरों की जो राइटली सो चीज़ें हैं, हड़ताल तो हर किसी का हक है, हम उसको नहीं रोक सकते. लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम टैक्स नहीं भरेंगे और उसके ऊपर हड़ताल करेंगे तो उनकी मर्जी है. गवर्नमेंट तो जो कलेक्शन के साथ पॉलिसीज बनाई हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, और जो जायज़ चीज़ें होंगी उसको मान भी लेगी. जी साहब, आप जिस तरह आपने अभी फरमाया कि ये नेशनल बैंक के इस सारे मामला को, ये बताइएगा कि अभी तक आपकी हुकूमत ने मतलब है कि जितने भी मुदरा ने आके ये मतलब इलाहात किए कि हमने करप्शन में इनको पकड़ लिया और वो कैद कर दिया, मतलब कौमी खजाने के अंदर क्या आया, मतलब अगर आप इसको ये चीजें आपके पास आ गई है, वो प्रूफ भी हो गया, तो उसको शेयर आउट करें और उसको उसका पैसा जो है वो उसको खजाने में डालें. अभी तक कितना पैसा उस खजाने में आया? ये देखिए सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और दिल का सवाल किया. ये भी हमारे बस का काम नहीं था. ये जो चीज़ें आज तक हम ला रहे हैं हमारे बस में नहीं था, लेकिन क्योंकि हमें हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई कि जब हमारे पास वजारतें, सदारतें, वजारत उज़्मा गवर्नमेंट नहीं भी थी तो हम ये एविडेंस निकाल के लाते थे. और कानून जो बनाया है डेमोक्रेटिक लोगों ने, वो बड़ा ज़बरदस्त कानून है. चोरी के लिए कानून साथ देता है और सीधे काम के लिए कानून आपका साथ नहीं देता. और मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ उसके अंदर, कि किराएदार घर के अंदर होता है, मालिक के मकान की नस्ल तबाह हो जाती है, वो घर के बाहर रहता है. तो काश जो आपका सवाल था वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन भी होती, तो मैं फिर ये लफ्ज़ नहीं कहता कि कपड़े जो हैं वो आवाम के सामने होंगे, फिर वो कपड़े का ऊपर मैं ही अपना हाथ रख लेता. सफर मान साहब जी, सर ये बताइए कि इन दिनों में जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान को, कराची की सूरत हाल है, काफ़ी ज़्यादा खराबी है वहाँ. आपसे तो ये कहते कि मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है. तमाम मीटिंग्स इसमें सूबे भी आते हैं, तमाम जो लाइन अथॉरिटीज़ हैं वो भी आती हैं. आप मीटिंग्स कर रहे थे, 2-3 मीटिंग आपने की भी, लेकिन उस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती. आपने फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाया, इतने बिलियन रुपीज़ इतने, लेकिन जब सैलाब आता है तो हमेशा आपकी गवर्नमेंट हो या किसी और की खराबी होती है. देखिए जी, जो कानून साजी हमने की लास्ट ईयर, उस कानून साजी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा मसला ये इंक्रोचमेंट का. इंक्रोचमेंट मैं जाके नहीं हटा सकता. फेडरल डोमेन, देखिए 18वीं तरमीम का जब मैं राग पीटता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये जमहूरियत को खतरे में ला रहा है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों की खुद मुख्तारी हो जाती है. जब सूबों की खुद मुख्तारी हो जाती है तो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता हूँ, लॉज बना सकता हूँ, इम्प्लीमेंटेशंस कर सकता हूँ, मीटिंग्स कर सकता हूँ, चेयर कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, अपने वसाइल दे सकता हूँ. लेकिन अगर मैं आपको सब कुछ दूँ और आप ही करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये तासुब आ गया सियासी कि कराची ने वोट पीटीआई को दिया था तो हम कराची को उठने नहीं देंगे, तो वो मेरा कसूर नहीं. उसके लिए मुझे कानून कहीं इजाज़त नहीं देता कि मैं आपका उस गवर्नमेंट का गिरबान पकड़ सकूँ या टांग सकूँ उनको. अगर वो मेरे पास बस में होता तो वो शायद फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कराची का प्रॉब्लम हमें नहीं नज़र आ रहा, या हम जाके बाल्टी में तो पानी हटा नहीं सकते, ना के इलेक्ट्रिक के अंदर खुद तार खड़े होकर सीधी नहीं कर सकते, ये सूबाई मसले हैं. और सूबाई मसलों के अंदर हम बैक एंड के अंदर
मे भी हम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, लेकिन हम लगे हुए हैं। नेशनल डिजास्टर से आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेयरमैन से, आप कोर कमांडर से वेरीफाई कर सकते हैं, आप इंतजामिया से वेरीफाई कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर से वेरीफाई कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर की नीयत को वेरीफाई कर सकते हैं। हम हर सतह पर कराची के अलावा भी हर चीज़ पे करने को तैयार हूं। मैं तो बड़ा इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूं कि कराची में चाहे पीपल्स पार्टी में रहने वाला आदमी हो, वोट देने वाला हो, पीटीआई या एमक्यूएम या फॉर दैट मैटर किसी भी पार्टी को देने वाला हो, सारे पाकिस्तानी हैं। हम ये सियासी तासुब नहीं कर सकते। हम सियासी आइडियोलॉजी पर लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन सियासी तासुब नहीं कर सकते। और मेरी सही धनी से ही बात हुई, सही धनी साहब कह रहे हैं कि लोकल बॉडी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। लोकल बॉडी से बात करते हैं, वो कहते हैं पीपल्स पार्टी नहीं कोऑपरेट करती। तो ये इशू इन दो डिपार्टमेंट्स का है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का है, इदारों का है, और लोकल बॉडीज का है। अब कौन इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। पिछले 40 साल से इधर क्या हो रहा है। जिशान साहब 92 से। सर ये बताइएगा कि नीलम झीलम के हवाले से कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है, कल 2 गोले जो है उधर नीलम झीलम के पास गिरे हैं, और जो मुतलका इदारे हैं वो इस बात को तस्दीक करते हैं कि वो गोले जो है बॉर्डर रिजर्वाइज में गिरे। तो जो वहाँ पर चाइनीज की इवैक्यूएशन है और जो नीलम झीलम की सिक्योरिटी है, तो कुछ उसके हवाले से बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि इंडिया के साथ जो आपका वो डाटा के एक्सचेंज का मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ, और अभी तक जो शराब के मसाइल हैं वो आपके सामने है, तो प्लीज़ इसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। देखिए, जहाँ तक इंडिया की बात है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पर कोई पोलिटिसाइज इस इशू को नहीं करना चाहता। और मेरी इंडियन इंतजामिया से भी जो मैंने डायरेक्शन दी वो दी कि जो सेटल्ड इशूज़ हैं, जो आज से कई साल पहले सेटल्ड हो चुके हैं, और ये डाटा ट्रांसफरिंग या डाटा शेयरिंग का जो सिलसिला है वो सेटल्ड इशू है, इस पर सियासत ना कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आज वो सियासत करते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिले होता है, उसका नुकसान होता है, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे, हम दीवार से लग जाएंगे। ना मैं वो चाहता हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडियन जो कॉम्पिटेंट इदारे हैं, रिलेटिव इदारे हैं, वो करेंगे। और मैंने अपनी डायरेक्शंस दी हुई हैं मिनिस्ट्री को भी, और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जैसे हमारी इंस्पेक्शन के टाइम पे उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, वो इस डाटा शेयरिंग के अंदर करेंगे। और हम कॉन्स्टेंटली उनको रिमाइंड करें, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर लगेंगे। वो हमारे लिए भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सेटल्ड इशू है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि देर होनी चाहिए थी। देखिए, नीलम झीलम में जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। और इसीलिए हमने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये भी रिकमेंडेशन हुई थी, और वो आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो मिनट्स का रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि यूज़ ऑफ फोर्स आप इवैक्यूएशन और ज़मीनें खरीदने के लिए भी करें। तो सबसे पहली पॉलिसी मैंने आके ये की है कि यूज़ ऑफ फोर्स किसी सूरत में पाकिस्तानियों पर तो हो ही नहीं सकती, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम यूज़ ऑफ फोर्स से कोई चीज़ करें। लेकिन जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी की ताल्लुक है, वी आर अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज़ इन हैंड, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और मुझे एग्जैक्ट मेरे पास इत्तला नहीं है कि एग्जैक्टली वॉज नीलम झीलम और टारगेट और नॉट, लेकिन सो फार ऐसी कोई खबर नहीं है। और कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर हम उसके साथ निपटेंगे भी इंशाल्लाह। फैसल साहब, आपने कहा कि सिंध हुकूमत की नाकामी है, बारिशों के जो नुकसान हुआ है कराची हैदराबाद में, जैसे बारिश शुरू हुई है वहाँ लाइट नहीं है, कराची में 3 दिन से लाइट नहीं है, हैदराबाद में लाइट नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेन नहीं हो, और वो इदारे फीडर गवर्नमेंट के मातहत है। क्या ये फीडर गवर्नमेंट की नाकामी नहीं है कि 3 दिनों से वहाँ लाइट नहीं है? देखें जी, वहाँ बहुत सारी जो इंटीरियर सिंध की, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, क्योंकि मेरी वजारत नहीं है, उमर अयूब साहब की है, लेकिन जो मेरे पास इतलात है उसके तहत ये कि जो वहाँ बहुत सारे जो कनेक्शन है, क्योंकि कुंडा सिस्टम आपको पता है कि बड़ा भरपूर रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो आपको याद है कि MNA जो नवाज शरीफ साहब के हैं, जो मज़हब का भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो 10,000 रुपये किराया देते थे जिस बिजली का, आज उसी बिजली का 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर मैं ये टेक्निकल साइड के ऊपर ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता, लेकिन क्योंकि बुरा हाल है सिंध का, चाहे वो के इलेक्ट्रिक, अगेन अगर फेडरल डोमेन है, फिर अगेन वो मातहत है या कोलैबोरेटेड है काम करने के लिए प्रोविंस के साथ, तो ये प्रोविंशियल इशू है जो अब बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। और जो सवालात आप कर रहे हैं उसमें रिलेटिवली मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। अब हमें वो बाय वर्च्यू ऑफ डिस्कशन हम फोन TV पे बैठ के करें, टेबल पे बैठ करें, ऑफिस में बैठ करें, या बाय फोर्स हमें कराना पड़े, लेकिन इसके हल अब कराना पड़ेगा, क्योंकि अवाम बिलबिला उठी है, वैसी मुश्किलात हैं, उसके बाद ये मुश्किलात हैं। तो ये टक ऑफ वॉर जो है मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है। मेरा अपना ख्याल है कि मैं CM सिंह से भी बात करूँगा, मेरी उनसे एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, कि इसमें प्लीज़ खुदा का वास्ता सियासी तासुब ना लेके। सर जी, ये बताइएगा कि ये जो बारिश और सैलाब है और इसकी वजह से जो बिजली की बंदिश है और उसका जो नुकसान, कोई एस्टीमेट आपके पास ज़ाहिर आ रहे होंगे कि कितना नुकसान हुआ है आदमी को, और जान माल और बिजनेस में?
दूसरा ये बताइए कि जो जिस अजमत की बुलंदी पर आप इस वक्त खड़े हैं, इसके पीछे वजूहत क्या है? वापस सवाल कीजिएगा जी। मैंने कहा जिस अजमत की बुलंदी पर आप इस वक्त हैं, इसके पीछे फैक्टर्स क्या है? इसके फैक्टर्स अभी तक, जहाँ तक आपने बुलंदी की बात की है, वो बुलंदी का फैक्टर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लोगों की दुआ है। अभी तक मेरे हाथ साफ़ हैं। मैं शायद ये बात नहीं कर सकूँगा जैसे मेरे हाथ बाकियों की तरह गंदे हो जाएंगे, लेकिन बाकियों का तो हाथ गंदे नहीं, उनका पूरा जिस्म ही काला हो चुका है। ये तो अल्लाह ताला रहम रखे और अल्लाह ताला बचा के रखे। जहाँ तक एस्टिमेशन की बात है, मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि देखिए, उमर अयूब इज़ द राइट मैन। उनकी मिनिस्ट्री, उनकी वजारत, उनका फिगर्स भी सही होंगे और वो एक्यूरेटली आपको बता सकेंगे, क्योंकि मेरा हाइड्रो पावर से ताल्लुक़ है, तो मेरे पास एग्जैक्ट डिटेलिंग उसकी है भी नहीं। नुकसान तो बहुत बड़ी हद तक तबाही हुई है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तबाही जो है वो है जानी माल की, जानी ज़िंदगियों की, इंसानों की ज़िंदगियों की, बच्चों की, मासूमों की, जिसका ज़ाला हम खरबों रुपए से भी नहीं कर सकते। जिसमें मैं बहुत अफसरदा भी हूँ। और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स देने का टाइम नहीं है कि हर किसी का डेथ हो, किसी के घर के अंदर इंतकाल हो और आप एक टिकट चला दें, बयान दे दें आगे जी मैं अफसरदा हूँ। मेरे ख्याल से किसी भी तरीके, बाय हुक और बाय क्रुक, हमें इस मसलों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। और फेडरल गवर्नमेंट की टीम जा भी रही है, मैं भी जा रहा हूँ, और हम राब्ते में भी, और उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह इस पर काबू जल्द पा लेंगे, और आइंदा आने वाले दिनों में इससे सबक लेके कुछ चीज़ें बिफोर टाइम ठीक कर देंगे, जैसे हमने पहले अलर्ट और अलार्म किया था। करामल्ला GNN से कि इलेक्ट्रिक जो है वो डायरेक्ट नेपरा के अंदर आती है, तो नेपरा की वजह से आप हर बात जो है वो अचानक में डाल देते हैं कि सुबह खुद मुताबिक सुबह इसको खुद हैंडल करेंगे। तो वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारियाँ हैं कि वफाकी हुकूमत ये क्या है कि 98 के बाद में सब कुछ सुबह खुद ही करें? नेपरा जो केयर है, ये केयर इलेक्ट्रिक जो है वो डायरेक्ट नेपरा के अंदर आती है। देखिए जी, मैं से ज़्यादा जो लोग हैं वो सिर्फ कराची में जो है करंट लगी हुई है। देखें, सबसे पहले तो ये देखें जी कि मैं इसका मुतल्लका वज़ीर नहीं हूँ, तो मुझ पे तो ये सवाल, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ वो गलत होगा। दूसरी चीज़ है कि जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, हम डाल नहीं रहे, यही फैक्ट है और यही मसला है, यही बदनसीबी है इस मुल्क की कि 18वीं तरमीम के बाद जो तबाही हो रही है उसका रिप्रिकॉशंस अभी आपको नज़र आ रहे हैं, आने वाले दिनों में इसके 10 गुना ज़्यादा नज़र आएंगे। सेंट्रलाइज एजुकेशन नहीं है, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी का मेकैनिज़म नहीं है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक इश्यूज़ हैं, आपके जो नालों के मसले हैं, ये जो सारे चल रहे हैं, ये सारे जो हैं ये कोलैबोरेशन से होने चाहिए, जैसे पहले पाकिस्तान चलता रहा। लेकिन आप अगर समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सरप्लस पैसा है, वो पैसा देते रहे, वो तबाही में जाते रहे, तो वो अब नहीं होगा। अब हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। 18वीं तरमीम का ये मतलब नहीं है कि कोई आदमी पाकिस्तान के पाकिस्तानियों के साथ तबाही और किस्मत उसकी बदल दे, ऐसा नहीं हो, गलत नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हम लास्ट क्वेश्चन सर, अगर रिक्वेस्ट है। सर, दो सवाल हैं। एक सवाल है कि कल आपके दो वज़ीरों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अली ज़ैदी साहब और खालिद महबूब साहब, खालिद साहब ने कहा कि 5000 अरब सिंध हुकूमत खा गई है, वही जो आपने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड की, आपके वज़ीर ने, कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन इख्तियार किए जाए जिसमें गवर्नर राज की भी बात है। उनकी डिमांड पर बता दें क्या फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है। दूसरा सवाल यह है कि 2010 में भी सैलाब आया था, ये तो छोटी सी बारिश थी। असल सैलाब जो है वो जो नीचे इलाकों में आता है वो होता है, उसका हल स्टोरेज ही है और आप बना भी रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। जो कालाबाग डैम का इशू है, अभी भी CCI से भी उसकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। कालाबाग डैम पे आपकी मिनिस्ट्री का हुकूमत का क्या होता है? आप मुझसे मज़ेदार सवाल कर रहे हैं और आखिर में चाहते हैं कि मेरे देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था, पहले भी अर्ज़ किया था कि जहाँ तक आपने बात की, जो खालिद महबूब सिद्दीकी साहब ने बात की, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।